Hello students, this is Pratima Vishwakarma here. Welcome you all in science online class. Students, I think you all are fit and fine and enjoying my lecture. Yes? Okay students. Now students, so far we have finished two chapter, chapter 1 and chapter 2. So name of chapter 1 is what? Food, where does it come from? And name of chapter 2 is component of food. And students, I have explained all the topics, all the contents of these chapter 2. Okay, and I think you students must have understood both the chapters very well. If you students have any doubt, any queries related to both these chapters, you can ask your doubts or queries to me on my personal number without any hesitation. Okay students, now students, it's time to start chapter number 3, and the name of chapter number 3 is fiber to fabric. So let's begin this chapter with introduction. 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 Okay, students. So before starting this chapter, let me ask you one question, and these questions are very simple. You can answer it very easily. I will also answer the question. First, listen question. So what things we need to survive? What things we need to survive? And also, what things protect us from diseases? Protect us from diseases. And one more question is there. What things we need to live in? Need to live in. So very simple questions, you can answer it very easily. So what things we need to survive? Yes, answer is food. Yes, food. We need food to survive. And which things protect us from diseases? Again, the answer is food. Food protect us from diseases. But what's the answer of this question? Need to, what things we need to live in? हमें ऐसी किन चीज़ों की ज़रूरत है, ऐसी किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है जिसमें हम रहते हैं? Yes, the answer is house. Okay, answer is house. So we need house to live in, we need food which protect us from diseases, we need food to survive. Okay, so similarly, my last question is, what things we need which cover our body and protect our body from harsh weather conditions? So what's the answer of this question? Yes, answer is cloth. Okay, the answer is cloth. So what's the role of cloth? So it, cloth cover our body. क्या करता है, कपड़े क्या करते हैं, कपड़े हमारी बॉडी को कवर करते हैं. क्लॉथ कवर आवर बॉडी एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम फ्रॉम हार्श weather harsh weather conditions. हार्श वेदर कंडीशन मीन्स वॉट? हार्श वेदर कंडीशंस, अगर ज़्यादा ठंडी है तो हम क्या करते हैं, कपड़े पहनते हैं, वुलन कपड़े पहनते हैं. और ज़्यादा गर्मी है तो हम किस टाइप के कपड़े पहनते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं. तो ये कपड़े क्या करते हैं, हमें वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, सो इट दिस प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. फूड, हाउस, क्लॉथ, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों हमारी लाइफ में बहुत ही ज़रूरी होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सो सिमिलरली क्लॉथ्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज फूड एंड शेल्टर फॉर ह्यूमन बीइंग्स. Okay students, okay, now as we have studied in previous classes that different food items are preferred in different states. Okay, so people in different parts of the world prefer different food items. Similarly, different clothes are preferred in different seasons and on different occasions. जैसे कि आप देखते होंगे कि तरह तरह के कपड़े होते हैं, तरह तरह के कपड़े को हम अलग अलग सीजन में पहनते हैं, और कई ओकेजन भी आते हैं, तो ओकेजन में भी हम, हमारे कपड़े कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं. वैसे ही पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ. तो जो लोग होते हैं वो भी अलग अलग कपड़े पहनते हैं. जैसे जम्मू कश्मीर के कपड़े अलग होते हैं, और साउथ के कपड़े अलग होते हैं, हमारे यूपी के कपड़े अलग होते हैं. ठीक है, तो सबका पहनावा अलग अलग होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ हियर माय क्वेश्चन इज, हाउ वी लुक स्मार्ट? हम स्मार्ट कैसे दिखते हैं? हमारे कपड़े अगर साफ़ हैं, स्वच्छ हैं और अच्छी तरह से सिलाई किए हैं, तभी हम कैसे दिखते हैं, स्मार्ट दिखते हैं. ठीक है, तो ये कपड़े बने किससे हैं? सो क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स
and stitched in different forms to make various dresses जैसे आपके स्कूल यूनिफॉर्म हो गया, आप अगर कहीं बर्थडे पार्टी में जा रहे हो तो वहाँ आपने एक स्पेशल तरीके का ड्रेस सिलवाया, या अगर शादी है तो वहाँ के लिए आपने अलग तरीके से कपड़े सिलवाए, ठीक है। तो क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड स्टिच्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स टू मेक वेरियस ड्रेसेस। जैसे कि हम पुलिस के भी कपड़े देखते हैं, उनके कपड़े अलग तरीके से सिले होते हैं, डॉक्टर के कपड़े अलग तरीके से सिले होते हैं, ठीक है। So similarly, clothes are stitched in different forms, okay, to make various dresses. ऐसे ही हम ठंडी के टाइम पे देखेंगे, ठंडी में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं, वुलन कपड़े पहनते हैं, गर्मी में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ द क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड स्टिच्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कपड़ा आया कहाँ से, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे क्लॉथ की हिस्ट्री। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ। अब हम हिस्ट्री ऑफ क्लॉथ के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग एंशियंट टाइम what happened, people had no idea about clothes. They lived in caves and lit fires to prevent themselves from the cold weather. कहाँ रहते थे? गुफा में रहते थे और ठंडी से अपने आप को बचाने के लिए आग जला के रहते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी बॉडी को कवर करना शुरू किया। किससे किससे कवर करना सीखा उन्होंने? बिग लीव्स, बिग लीव्स, बार्क, बार्क मीन्स व्हाट, जो पेड़ की छाल होती हैं उससे। नेक्स्ट, एनिमल की स्किन से, एनिमल स्किन, एंड फर, फर मीन्स एनिमल के हेयर से, ओके। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि क्लॉथ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें प्रोटेक्ट करता है वेदर कंडीशन से। वैसे ही ड्यूरिंग एंशियंट टाइम पीपल यूज टू कवर देयर बॉडी फ्रॉम दीज थिंग्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम, टू प्रोटेक्ट themselves themselves from extreme hot and cold climate, hot and cold climate, ओके स्टूडेंट्स। तो आ रहा है समझ में? क्लॉथ, जो पहले ज़माने के लोग थे उनको कपड़े का आइडिया कुछ नहीं था, तो वो अपने आप बॉडी को किससे कवर करते थे? अपनी बॉडी को पत्तों से कवर करते थे, बार्क से कवर करते थे, एनिमल की स्किन से कवर करते थे, एनिमल के फर से, फर मीन्स हेयर से कवर करते थे। क्यों? ताकि वो अपनी बॉडी को किससे बचा सकें? हॉट और कोल्ड क्लाइमेट से बचा सकें, ठीक है। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने एनिमल की जो फर है, एनिमल का जो बाल है, उसको ट्विस्ट करना शुरू किया और उससे एक लंबा धागा बनाया, ठीक है। फिर उस धागे से उन्होंने कपड़े को बुनना शुरू किया, ठीक है। आफ्टर दैट पीपल यूज टू वेयर कॉटन क्लॉथ एंड ऑल्सो द फ्लेक्स फाइबर, ओके। फ्लेक्स फाइबर, कॉटन फाइबर, कॉटन फाइबर एंड फ्लेक्स फाइबर। तो ये कॉटन फाइबर एंड फ्लेक्स फाइबर क्या है? दीज आर नेचुरल फाइबर्स, ये दोनों नेचुरल फाइबर हैं। तो इनसे उन्होंने कपड़े बनाना शुरू किया, इनके कपड़े उन्होंने पहनना शुरू कर दिए, ठीक है। फ्लेक्स इज कल्टिवेटेड नियर द नाइल रिवर, नाइल रिवर, ठीक है। सो ये दोनों क्या है? ये दोनों नेचुरल फाइबर हैं जिनसे कपड़ा उन्होंने बनाना शुरू किया और फिर कपड़ा इनके पहनने शुरू किए, ठीक है। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, पीपल वर अनअवेयर अबाउट स्टिचिंग क्लॉथ। अब इसके बाद तो इन्होंने तो कपड़े पहनना शुरू किया, लेकिन ये लोग इसको सिलना नहीं जानते थे, ये लोग उसके बारे में एकदम अनअवेयर थे, ठीक है। सो दे सिंपली यूज टू ड्रैप द वुवन फैब्रिक अराउंड द वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं कि आज भी कुछ ऐसे कपड़े हैं जिनको सिला नहीं जाता है, वो सिर्फ अपनी बॉडी पे ड्रैप किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल साड़ी, साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, टर्बन। So some fabric, these are some fabric in our country which are worn unstitched, or we can say these dresses, these fabrics are wrapped around the body, and ये क्या है? ये unstitched है, ये सिले नहीं होते हैं, इनको डायरेक्ट पहना जाता है, इनको डायरेक्ट लपेटा जाता है, ठीक है। So let me show you figure, see।
सो दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। फिर धीरे जब स्विंग निडल का इन्वेंशन हुआ उसके बाद लोगों ने कपड़े सिलना शुरू किए। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। यू कैन सी इमेजेस ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग। Okay students, now this is all about cloth. Now as you all know that the name of chapter is fiber to fabric. So what is the meaning of this fiber? ये कपड़ा तैयार कैसे हुआ, कपड़ा को बनाया कैसे? So first we will see what is this fiber. So fiber, what is this fiber? Okay student, fiber क्या होता है? Fiber is a thin hair like hair like or thread like thread like strand from which yarns are made. ओके स्टूडेंट्स, सो फाइबर क्या होता है? ये पतला सा या बाल की तरह या धागे की तरह एक स्ट्रैंड होता है जिससे धागा तैयार किया जाता है। ठीक है, यार्न मीन्स धागा, रील जो हम कपड़े सिलते हैं जिससे, दैट इज यार्न। ओके, तो फाइबर क्या है? फाइबर इज अ थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, हियर इज अ सेम, ये मेरे पास एक धागा है। ठीक है, अब इस धागे में आपने देख रहे हैं कि कई इसके रेशे निकले हुए हैं। ये देखिए, तो द फाइबर्स आर स्प्लिटेड इनटू मैनी, सी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे कई फाइबर्स निकले हुए हैं। तो ये जो फाइबर्स हैं, दीज आर थिन हेयर लाइक और थ्रेड लाइक स्ट्रैंड्स। ओके, ये जो स्ट्रैंड्स आप देख रही हैं, स्ट्रैंड्स क्या स्प्लिट हो गए हैं। सो दिस इज द थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड्स एंड दीज स्ट्रैंड्स आर नथिंग बट फाइबर। ठीक है, तो इन्हीं फाइबर्स को जब ट्विस्ट किया जाता है, व्हेन द फाइबर्स आर ट्विस्टेड, सो इट फॉर्म्स अ यार्न। ओके, तो एक धागा तैयार होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये जब फाइबर्स को हमने ट्विस्ट कर दिया लाइक दिस, सो दिस फॉर्म्स अ यार्न। सो एक यार्न तैयार होता है। ठीक है, और इसी यार्न से कपड़े की सिलाई की जाती है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज फाइबर? फाइबर इज अ थिन हेयर लाइक strand from which yarns are made. Okay, now what is this yarn? So let's write the definition of yarn. Yarn is a continuous strand of twisted threads twisted threads of fibers. ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो फाइबर्स हैं, इन फाइबर्स, ये जो अलग अलग हमने अभी देखे थे, सी ये जो फाइबर्स निकले हैं इसमें से, तो इन फाइबर्स को क्या किया जा रहा है? इन फाइबर्स को हमने ट्विस्ट कर दिया। ओके, ये फाइबर्स जो आप देख रहे हैं, इनको जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूसली इसको ट्विस्ट कर रहे हैं, तो एक धागा तैयार हो रहा है। ओके, सो व्हाट इज दिस यार्न? यार्न इज अ कंटिन्यूस स्ट्रैंड ऑफ ट्विस्टेड थ्रेड्स ऑफ फाइबर्स, दैट इज यार्न। ओके, और इसी यार्न की हेल्प से एक फैब्रिक तैयार होता है। सो व्हाट इज फैब्रिक? नाउ लेट्स राइट द डेफिनेशन ऑफ फैब्रिक. फैब्रिक इज व्हाट? Fabric is the the material material that we use for making cloth. Making cloth is called fabric. Is called fabric. Okay students, so फाइबर से यार्न बना है, यार्न से फैब्रिक। फाइबर क्या होता है? फाइबर रेशा होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था। रेशे से धागा तैयार होता है और धागे से कपड़ा तैयार होता है। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हाउ द क्लॉथ्स और हाउ द फैब्रिक्स आर फॉर्म्ड। फर्स्ट फाइबर, देन यार्न, देन आफ्टर यार्न फैब्रिक। ओके, okay, now we will see what are the types of fibers. So there are two different types of fibers. So let's see next topic, that is types of fiber. Okay student, so next topic is types of fiber.
सो व्हाट इज फाइबर? फाइबर क्या है? फाइबर एक पतला सा हेयर लाइक स्ट्रैंड होता है, ओके, दैट इज फाइबर, जिसको ट्विस्ट करने के बाद एक यार्न फॉर्म होता है। यार्न क्या होता है? धागा होता है, और फिर उसी धागे से कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फाइबर। सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर. फर्स्ट वन इज natural fiber and second one is synthetic fiber. Okay, so what is this natural fiber? What is this natural fiber? So let's write the definition. Fibers obtained from nature. Fibers obtained from nature are called natural fibers. Okay, and synthetic fibers are what? Synthetic fibers are fibers obtained obtained from chemical substances. chemical substances Fibers obtained from chemical substances called are called synthetic synthetic fibers. Synthetic fibers. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? तो नेचुरल फाइबर क्या होते हैं? जो हमें प्रकृति से ऑब्टेंड होते हैं, दैट इज द नेचुरल फाइबर। और सिंथेटिक फाइबर जो केमिकल से बने होते हैं, दैट इज द सिंथेटिक फाइबर। सो व्हाट्स द एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर? एग्जांपल ऑफ नेचुरल फाइबर्स आर प्लांट फाइबर्स plant fibers and plant fibers and fibers animal fibers. Okay, and here example of synthetic fibers are nylon, rayon, polyester and acrylic ये सब केमिकल सब्सटेंस से बनाया जाता है। ऐसे ये फाइबर्स को सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। और प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर, ये हमें कहाँ से मिलता है? ये नेचुरल होते हैं। दीज आर द नेचुरल फाइबर जो हमें प्रकृति से मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी about plant fibers. What are the plant fibers and animal fibers? Okay, so plant fibers, first we will talk about plant fibers. So how we define plant fibers? Plant fibers means what? The fibers which we obtain from plants. Okay, they are called plant fibers. So the fibers obtained obtained from from plant obtained from plants are called plant fibers. They are called plant fibers. Okay students, now what are the example of plant fibers? अब कौन कौन से fibers होते हैं जो हमें plant से मिलते हैं? So let's see some examples of plant fibers. So examples are first one, कॉटन। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो एंशियंट लोग थे उन्होंने धीरे धीरे कॉटन के कपड़े पहनना शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो कॉटन का कपड़ा कहाँ ग्रो किया जाता है? वेयर दिस कॉटन? ओके, वी विल टॉक अबाउट लेटर। ओके, फर्स्ट विल सी कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेयर। सो कॉटन और ऑब्टेन्ड फ्रॉम fruits, okay, of the cotton plant. Next example of plant fibers, jute. So jute obtained from stem. कॉटन कहाँ से ऑब्टेन होता है? कॉटन प्लांट के फ्रूट से। जूट कहाँ से ऑब्टेन होता है? स्टेम से। ओके, स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। नेक्स्ट, थर्ड एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर्स, फ्लैक्स stalk. Flax obtained from the stalk of the flax plant. स्टॉक जैसे डंठल। ओके, स्टॉक को क्या बोलते हैं? डंठल। फोर्थ एग्जाम्पल ऑफ प्लांट फाइबर्स आर hemp obtained from stem of the hemp plant. Okay, stem. Next example of plant fibers, coir. Now what is this coir? So coir is obtained from the outer covering of coconut plant. Okay, next example of plant fiber, sisal. So obtained from leaves of the
sisal plant. Sisal plant. Okay, sisal plant. So these are the examples of plant fibers: cotton plant, jute, flax, hemp, coir, sisal. Okay, now come to animal fibers. So what is this animal fibers? Animal fibers like as plant fiber, जैसे हमने plant fiber को define किया था कि fibers that obtained from plants, that is plant fibers. So animal fibers is the fibers obtained from animals. The fibers obtained from animals. The fibers obtained from animals are called animal fibers. Okay, so what's the example of animal fibers? Example of animal fibers are: first one, silk. Silk. So silk कहाँ से obtained होता है? Silk obtained from cocoons of silk moth. Cocoons of silk moth. ओके, सिल्क कैसे ऑप्टेन होता है? सिल्क मॉथ के कोकून से ऑप्टेन होता है. तो स्टूडेंट्स आप ये 7th क्लास में डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ वहाँ पे दिया गया है, तो आप वहाँ पे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे सिल्क मॉथ से सिल्क को ऑप्टेन किया जाता है. Next example of animal fibers are wool. Okay, so wool is obtained from hair of sheep. हेयर ऑफ शिप. शिप के हेयर से ऊन प्राप्त किया जाता है. सिल्क कहाँ से प्राप्त होता है? सिल्क मॉथ के कोकून से. ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल fibers. Understood students? So plant fiber क्या होते हैं? Plant fibers, the fibers obtained from plants are called plant fibers, and these are the examples of plant fibers. Cotton. Cotton कहाँ से obtained होता है? Cotton plant के fruit से. Okay, all students remember all these things because every time question asks from this where the cottons are obtained, so you can write the answer. Cottons are obtained from fruits of the cotton plant. Jute are obtained from stem of the jute plant. Flax are obtained from stalk of the flax plant. Hemp are obtained from stem of the hemp plant. Coir, very important question. Coir obtained from outer covering of coconut plant. Sisal obtained from leaves of the sisal plant. So these are the plant fibers. Okay, and what are the example of animal fibers? Animal fiber example are silk. Silk कहाँ से obtained होता है? Cocoons of silk moth, and wool is obtained from hair of sheep. Understood students? Okay, now come to synthetic fibers. Okay, synthetic fibers हमने देखा. What is the definition of synthetic fibers? Synthetic fibers are obtained from chemical substance. जो chemical substance से fibers तैयार होते हैं, they are called synthetic fibers. और इसकी examples क्या है? Nylon, rayon, polyester and acrylic. Understood students? Okay, now in this chapter we are going to see the details of cotton and jute. ओके, कैसे कॉटन को ऑब्टेन किया जाता है एंड हाउ द जूट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट. ओके स्टूडेंट्स, सो cotton, how the cotton are obtained from the cotton plant. So first we will talk about cotton are usually grown in what type of field or what type of climate required for cotton. Okay, so the first point about cotton are cotton plants plants are grown in fields fields having warm warm climate and black soil. तो कॉटन को कहाँ ग्रो किया जाता है? कॉटन को ग्रो करने के लिए कैसी मिट्टी होती है? कॉटन किस टाइप की मिट्टी में ग्रो करता है? ब्लैक सॉइल में. ओके, काली मिट्टी में ग्रो करता है. उसका क्लाइमेट कैसा होता है? वार्म क्लाइमेट होता है. ठीक है, वार्म क्लाइमेट में कॉटन ग्रो करता है. सेकेंड पॉइंट अबाउट कॉटन इज कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स. कौन कौन से स्टेट्स होते हैं जहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होता है? सो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर पंजाब, नेक्स्ट गुजरात, नेक्स्ट MP, दैट इज मध्य प्रदेश, कर्नाटका, नेक्स्ट महाराष्ट्र, etc. Okay, so these are the cotton producing states. Okay students, now the third point, how we get or how we obtain cotton from cotton plants. So मैंने आपको बताया कि cotton are obtained from fruits of the cotton plant. So how? See here, the cotton pods, the fruits of the cotton plants are called cotton balls. Okay, जो cotton का fruits, cotton plant का जो fruit होता है, okay, the fruits are called
cotton ball, cotton balls. Okay, so the fruits of the cotton plants are called cotton balls and इसका साइज क्या होता है, लेमन साइज का होता है, लेमन साइज का। तो वो ये बर्स्ट कब करता है, ये फ्रूट कब फूटता है, कभी जब ये मेच्योर होता है। ओके, जब ये मेच्योर होता है तो फूटता है और इसकी जो सीड्स होते हैं जो कि कॉटन फाइबर से ढके होते हैं वो आराम से दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और ये जो तो कॉटन फाइबर को सीड से कैसे सेपरेट किया जाता है, विद द प्रोसेस ऑफ गिनिंग। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग। Ginning. So what is this ginning? Ginning is the process of separating cotton cotton fibers from seeds from seeds by combing by combing. Okay, so you can see in figure, see दिस इज गिनिंग ऑफ कॉटन। सो गिनिंग क्या होता है, गिनिंग क्या होता है, जो कॉटन सीड्स पे जो कॉटन फाइबर्स होते हैं, ओके, कॉटन फाइबर्स जो सीड्स पे रैप्ड होते हैं, तो उन कॉटन फाइबर को सीड्स से कैसे अलग किया जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ गिनिंग। ओके, कॉम्ब की हेल्प से कॉटन फाइबर को सीड से अलग किया जाता है और ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। सो यू कैन सी इन फिगर, हियर द मैन इज सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड्स बाय द प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग। ठीक है, सो इस तरह से कॉटन फाइबर्स को सीड से अलग किया जाता है। अब तो पहले तो लोग कॉम्ब से करते थे, हाथ से करते थे, कॉटन फाइबर को सेपरेट हाथ से करते थे, लेकिन अब तो मशीन आ गई, अब मशीन से कॉटन फाइबर को सेपरेट किया जाता है। Okay students, so this is all about cotton. So I think students you have understood the topics, today's topic. Now in we will meet in our next video, and in that video we will talk about jute, how the jute is obtained from the jute plant. Okay students, so till then keep studying, stay home, stay safe. Thank you and have a nice day.